So very good evening, aspirants. Today we'll discuss some of the questions which are left as under the foundation question. So let's start it here without wasting the time. So we had discussed the lot of the questions in the previous sessions. So here the question is from 23, that DAS is obtained free of cost through the press or media relation. Everyone, please avoid the annotation. Please don't write anything. We have the option to disable and all. Just a bit. Okay. So right answer of the question is what? Just what is happening? Just a bit. Yeah. So right answer is B. Public relation is often free of cost through the press or the media relations. So there is a difference between advertising and the public relations, right? So whenever we talk on the public relation, it is always a free of cost through the through the press or the media relations it is done. So public relation is the bridge between the organization and its public. Basically, we make the build the image of an organization, so whereas the advertising is totally paid form of communication. Okay, so you should remember the difference between the advertising and the public relations. So definition से बहुत questions आते हैं, तो definition आपको ध्यान में रखने हैं. So what is the definitions of the advertising and what is the conceptual definition of the public relation? So concepts क्लियर है तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि क्या डेफिनेशंस है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द हेडलाइन? सो ऑप्शंस आर हियर. प्लीज आंसर द क्वेश्चन. हेडलाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यस. So right answer of the question is C. Okay. So most readers go through the headline to choose the story and they describe the entire story in a few words both. Basically, it's a summary of the entire news, right? So तभी जाकर हेडलाइन से हमें हेडलाइन अगर हमें अट्रैक्ट करेगी तभी जाकर हम एंटायर स्टोरी को रीड करेंगे. ठीक है. तो हमें हेडलाइन ध्यान में रखते हुए, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, स्टोरी को ध्यान में रखते हुए हम फ्यू वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब करते हैं. Now, question number 25. Captions for the photographs must. Options are here. Please find the appropriate one. Yes. So, right answer of the question is D. Captions for photograph must be descriptive as possible. So, leave room for interpretation. Identify all objects in the photo, even if can be creative as possible. Okay. So, here, if we go through the options, देखिए फोटो को अगर a photo caption should provide the reader basic information that needed to understand a photograph and its relevance to the news. So जब भी आप फोटोग्राफ के लिए कैप्शंस लिख रहे हैं, सो इट इज़ टू बी अंडरस्टूड. आपने क्या बोला कि सर आइडेंटिफाई द ऑल द ऑब्जेक्ट इवन इफ obvious. ये कोई आंसर्स नहीं है. दिस इज नॉट द आंसर फॉर द कैप्शन फॉर द फोटोग्राफ्स, राइट? That you are identifying the all the objects. Here it is not to identify the all the objects. Here you have to just describe about the photos, right? Best descriptions, right? In a line. एक लाइन भी, वन लाइनर डिस्क्रिप्शन भी होता है, उसी को डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं. ठीक है. सो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, कि फोटो को पूरा आपने एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है. सो दैट इज व्हाट हेयर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज हेयर डी. ओके, इट इज ऑल क्लियर एवरीवन?
प्लीज say it as clear, then we'll move ahead. Okay, चलिए. Next, which of the following is not true for the television as a medium? ऐसे ही क्वेश्चन था रेडियो एज ए मीडियम का, अभी क्वेश्चन है टेलीविजन एज ए मीडियम का. नॉट ट्रू. एवरीवन आंसर. चलिए. What about the others? Please answer the question. Participate in the question. Okay. चलिए. सो अगर राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, सो व्हाट इट इज. यस. सो एब्सोल्युटली इट इज. सो नॉट ट्रू. ध्यान में रखेंगे आंसर क्या है. नॉट ट्रू. सॉरी, क्वेश्चन क्या है. नॉट ट्रू. सो रिगार्डिंग इट इज लेस इम्पैक्टफुल देन रेडियो एंड प्रिंट, कभी हो ही नहीं सकता. टेलीविजन इज मोर इम्पैक्टफुल देन रेडियो एंड प्रिंट. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लेस इम्पैक्टफुल. ओके. सो इट इज़ अ ऑडियो विजुअल मीडियम. ऑडियो और वीडियो दोनों का मीडियम है ये. सो इसीलिए इट इज़ मोर इम्पैक्टफुल, राइट. सो हेयर द ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट अदर दैन द बी सी डी. ओके. मोहम्मद बिलाल अहमद, इट इज़ क्लियर टू यू. क्लियर है आपको. चलिए. रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट इज नोन एज. इट इज़ सो सिंपल. जब हम इंटरनेट के साथ इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा. यस, ऑनलाइन जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ ई पेपर. ई पेपर का क्या बेनिफिट्स है. यस. सो राइट आंसर इज एब्सोल्युटली डी. सभी बेनिफिट्स है ई पेपर के. इट एक्सटेंड्स द रीच एज वेल. इट हैज़ ऑल इंटरेक्टिव फीचर्स. इट कैन easily be archived. So lot of the benefits of this e-newspapers are there. So foldable भी है. uh, Information is easy to display. It is easy to download, easy to connect to computer, easy to share. So lot of the benefits are there. Question number 29 here. The citizen journalists are helpful resources for mainstream media because. Yes, so right answer is क्या. ए, दे प्रोवाइड द ब्रेकिंग न्यूज़. सो आज के टाइम पे लोगों के पास ज़्यादा न्यूज़ है. और अब मेन पहले होता था क्या कि मेन मेन स्ट्रीम मीडिया के पास ज़्यादा न्यूज़ हुआ करती थी, राइट. दे वेर हैविंग द लॉट ऑफ द न्यूज़, राइट. दे वेर टेकिंग फ्रॉम द न्यूज एजेंसीज. बट वट द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड. नाउ दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सिटीजन जर्नलिज्म बिकॉज दे हैव द सोशल मीडिया accounts and they are publishing the breaking news on their. So because they can easily record the things. Okay. So they have the website, they have the blogs, they have the social media. So they are uploading and disseminating the informations there. So it becomes the helpful resources for the mainstream media actually. Okay. Now which of the following is true for the Mahatma Gandhi as a journalist, everyone. आज मैं आपको यूट्यूब की जर्नी भी थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, ठीक है. कि कौन कौन से आपको क्या देखने हैं, क्या वाई यूट्यूब इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस दैट टू प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम. सो विल शेयर दैट ऑल्सो. ओके. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर.
विच आर ट्रू फॉर महात्मा गांधी एज ए जर्नलिस्ट। मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड रॉन्ग, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने सभी ने गलत दिया है। सो देखिए, महात्मा गांधी एज ए जर्नलिस्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनकी महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता कैसी थी, दैट वी हैव टू नो, राइट। उन्होंने कितने अखबार चलाए, राइट, अखबारों का चलाने का मेन उद्देश्य क्या था। सो ही वॉज द एडिटर ऑफ इंडियन ओपिनियन इन द साउथ अफ्रीका। बेसिकली इंडियन ओपिनियन 1903 में शुरू हुआ, और साउथ अफ्रीका में ये बेसिकली वहाँ पे ये इंडियन ओपिनियन को शुरू किया, राइट। बिकॉज वहाँ के लोग भी परेशान थे, जैसे हमारे देश में हम अंग्रेजों से परेशान थे, वैसे ही वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का जो सिलसिला है वो बहुत चल रहा था। सो दे वेर ऑल्सो वांटिंग द फ्रीडम, राइट। So Indian opinion in the South Africa has been launched. So he became the editor of Young India as well. His newspaper did not have that vitamin actually. बिल्कुल सही है. So all of these are correct answers in regard of the Mahatma Gandhi as a journalist. Okay. So you should know and note it down. So Harijan newspaper, Young India newspaper, Indian Opinion newspapers, these all newspapers are of the Mahatma Gandhi who worked as an editor in that. Right? It's clear to everyone? Say yes, then we'll move ahead. Okay. चलिए, which of the following is true for the radio? Everyone answer. Good. So here the right answer is absolutely the all of you have answering D. So let's take it here. So true for radio, it is like having a conversation with the listeners. बिल्कुल सही. Radio script has to sound as if it is being read. Radio stations do not have the specific target audience, right? So if you would see here that मुझे नहीं लगता that you all are saying the D, that radio stations do not have the specific target audience. Yes, radio station have the specific target audience. आपको क्या लगता है नैरो ऑडियंस होते हैं उनके एफएम रेडियो स्टेशंस जो हैं वो क्या हैं, उनके अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होते हैं उनके, राइट। ऑल इंडिया रेडियो के अलग टारगेट ऑडियंस होते हैं, अलग अलग सिटी के रेडियो स्टेशन के अलग टारगेट ऑडियंस होते हैं। सो it is here saying do not have the specific target audience, but it have the specific target audience, right? So तो इसीलिए यहाँ पे most appropriate here it is A. And if you would read the explanation as well, it is mentioned there, right? Radio programming provide listener with the music, a source of info news, and as well as the opportunity for social change via interview, chat based and talk. So a lot of the things are there with the radios which you have to focus while going through the questions, right? कि क्या स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। so you have to be very logic in each of the statements, right? Then only you can answer. Chaliye, next. Which of the following is true for the blogging? Everyone? Sir, it can be done on any topic. Chaliye. So it is short for web blogging. It can be done on any topic. There are multiple host sites. So yes. So here the right answer is D. It is. So कैसे आप लोगों ने B कहा है? So मुझे लगता है सभी है, बिकॉज व्हेन यू से अबाउट द ब्लॉगिंग, राइट। So there are the multiple host sites where you can start the blog, right? And it can be done on any of the topics. The lot of the topics are there with the photography, food, uh, the traveling and all. It is short for weblogging, yes. So it is not like the 3 to 4 hours, 5 hours. So it is just a short blog. Today's like the short blog is more popular here. ठीक है, चलिए। सो नाउ वी विल शेयर टू यू ऑन द पेज द यूट्यूब चैनल, ठीक है, जहाँ पे आपको मैं शो करूँगा कि क्या देखना है वहाँ पे, किस तरह के कंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द मोनिटेनस थिंग्स दैट वी आर डूइंग हियर। सो विल चेंज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट वेयर वी शुड फोकस, ठीक है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ अगेन।
जस्ट अ वेट। Are you able to see the screen, everyone? Is the screen visible? चलिए, so what you have to do, this is the channel actually, right? द जेम्स स्टडी हब का यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू फोकस, आपको सारी वीडियोस नहीं देखने। सो शॉर्ट्स पे आना है, ठीक है। मैं आपको कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की शॉर्ट्स बनी है, और वो आपको देखनी है। कई सारे नोट्स आपको शॉर्ट्स से बनाने हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए, जस्ट लाइक आई एम राइटिंग, यहाँ पे आप आकर सर्च भी कर सकते हो। यू कैन कम हियर ऑन द चैनल एंड यू कैन सर्च द वीडियोस, लॉट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द यूजीसी नेट विच हैज़ बिन प्रिपेयर्ड हियर, राइट। सो लाइक आप देखेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख ही लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको कुछ वीडियोस चलाकर प्ले करके शो करूँगा, ठीक है। सो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे द लॉर्ड नॉर्थक्लिफ का जो है, व्हाट ही इज सेइंग अबाउट द न्यूज़, द व्हाट द ट्रूथ अबाउट द न्यूज़ इज देयर। 24 फ्रेम्स पर सेकेंड एफपीएस क्या होता है, ना, राइट। ओरिएंटलिज्म क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स वहीं से उठाए गए हैं, क्वेश्चन से उठाए गए टॉपिक्स है, वो आपको बनाया गया है, ठीक है। सो ये सारे आपके टॉपिक्स जो वहीं से हैं, कहीं से देखेंगे। जीडी खोस जो है खोसला कमेटी, राइट। श्याम बेनेगल, इंडियाज फर्स्ट फीमेल पायलट, राइट। सो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एफटीआई, प्रसार भारती, ऑटोनोमस, ठीक है। आरजीबी कलर्स, IC 814, ठीक है। प्लेगरिज्म इन द रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, era of technology, ransomware, panopticon, right? These all the concepts are there where you can, lot of the shorts videos are there. So what you have to do, you have to watch this all, right? Just like for example, I will show you something just to play कि कुछ बेस्ट शॉर्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, so that you can learn। देखिए, सिटीजन जर्नलिज्म की अभी हम बात कर रहे थे, सिटीजन जर्नलिज्म क्या है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अभी रेडियो स्टेशंस की बात करें तो जस्ट प्ले है एंड लिसन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फेमस रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी और उनके टैगलाइंस के बारे में। रेडियो मिर्ची 98.3 इट्स हॉट, माई एफएम 94.3 जियो दिल से, बिग एफएम 92.7 धुन बदल के तो देखो, रेड एफएम 93.5 बजाते रहो, रेडियो सिटी 91.1 वाटर फन, धमाल 24 एफएम 106.4 ढिंचैक, फीवर एफएम 104 बकवास बंद बदलाव शुरू, OFM 104.8 सबसे फिल्मी, रेडियो नशा 107.2 फिर वही दीवानगी, रेडियो 1 94.3 मैक्सिमम म्यूजिक, रेडियो इंडिगो 91.9 रेडियो स्टेशन फॉर अ फन। ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव। So how was the video, everyone? This was all about the tagline of the FM radio stations, okay? Have you heard the sound was played? Yes, chaliye. So this is just a demo. I will show you some more. Like if you would search here the newspaper, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर सर्च किया तो आपके न्यूज़पेपर्स पे जितने वीडियोस हैं दैट विल कम हियर। सो बेटर है आप शॉर्ट्स में आ जाएं और यहाँ पे न्यूज़पेपर पे आप देख लें। इवन कंट्रोल F आप प्रेस करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़पेपर का भी आ जाएगा, ठीक है।
देखें गांधी न्यूज़पेपर, अभी हमने बात कर रहे थे गांधी न्यूज़पेपर का। सो महात्मा गांधी की सारे न्यूज़पेपर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। देखिए इंडियन ओपिनियन, हरिजन एंड ऑल, ठीक है। वैसे ही टोटल 8 है। यस, दिस ऑल आर ऑन द। अब देखिए इंडियाज मेजर न्यूज़पेपर एंड देयर हेड ऑफिस, ये हाईलाइट हो रहा है येलो कलर से, ये देखिए। फिर नेक्स्ट देखा जाए रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर, ठीक है। वैसे ही टॉपिक डालकर आप बहुत सारे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑर्गेनाइजेशंस, टैगलाइन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर्स। अब देखिए यहाँ पे एब्रिविएशंस रिलेटेड टू द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। सो एब्रिविएशन से भी कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ। आज हम जानेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ एब्रीविएशंस के बारे में। फर्स्ट, पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। थर्ड, पीआरएसआई, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। फोर्थ, एएससीआई, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। फिफ्थ, बीओसी, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। सिक्स, डीएवीपी, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। सेवन, आरएनआई, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। एथ, डीएफएफ, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। नाइन्थ, ट्रिपल एआई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। टेंथ, IPI, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। 11, INS, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। 12, NFAI, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। 13, IRS, इंडियन रीडरशिप सर्वे। 14, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव। So this is what about the important abbreviations in the journalism and mass communications, okay। तो ये सारे आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगे, ठीक है। तभी जाकर आप देखिए एडा मॉडल के बारे में, डॉट कॉम, पीकेरोसी, फॉर्मेट्स, नोटा, ऑल इंडिया रेडियो, व्हाट इज पापाराजी इन द जर्नलिज्म, व्हाट इज साइबर क्राइम, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स आर देयर, राइट, विच वी हैव टू लर्न। सो आपको सारे फोकस करने हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक और आपको न्यूज़पेपर्स का देखिए 3 पार्ट में बनाया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो लेट्स प्ले हियर द पार्ट 1, राइट। आज हम जानेंगे भारत के 1780 से लेकर 1914 तक के लोकप्रिय समाचार पत्रों के बारे में। फर्स्ट, बंगाल गैजेट 1780 बाय जेम्स ऑगस्टस सिकी। सेकंड, मद्रास कुरियर 1785 बाय रिचर्ड जॉनस्टन। थर्ड, समाचार दर्पण 1818 बाय बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी। फोर्थ, संवाद कमोदी 1821 बाय राजा राम मोहन रॉय। फिफ्थ, मिरात अल अखबार 1822 बाय राजा राम मोहन रॉय। सिक्स, बॉम्बे समाचार 1822 बाय फरदून जी मर्जबान। 7, उद्दन मातंड 1826 बाय जुगल किशोर शुक्ल। 8, बगदूद 1829 बाय राजा राम मोहन रॉय। 9, द टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 बाय बेनेट कॉलमन। 10, द पायनियर न्यूज़पेपर 1865 बाय जॉर्ज एलन। 11, द स्टेटमैन 1875 बाय रॉबर्ट नाइट। 12, आनंद बाजार पत्रिका 1876 बाय शिशिर कुमार घोष। 13, द हिंदू 1878 बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर। 14, केसरी 1881 बाय लोकमान्य गंगाधर तिलक। आज हम जानेंगे। So ऐसे दिस इज द पार्ट 1 एक्चुअली। सो अलोंग पार्ट 2, पार्ट 3, सो न्यूज़पेपर्स का इसी तरीके से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? क्लियर? गुड। सो विल शो यू। सो ओनली दस, यस। अगर सभी को अच्छी लग रही है वीडियो देन से यस, ठीक है। इफ इट इज अप टू यू एंड चलिए, ठीक है। सो देखेंगे अभी, आज मैं इसी को आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जो जितने भी हैं। आज हम जानेंगे भारतीय सिनेमा के हर क्षेत्र में अपने नाम के आगे प्रथम जोड़ने वाली फिल्मों के बारे में। पहला, विच वॉज द फर्स्ट फिल्म बैन बाय CBFC? द आंसर इज CBFC बैन नील आकेशर नीचे, विच वॉज डायरेक्टेड बाय मृणाल सेन इन द ईयर ऑफ 1958. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म वॉज फर्स्ट टू रिसीव एन अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? द आंसर इज मदर इंडिया, विच वॉज डायरेक्टेड बाय महबूब खान in the year of 1957. It was the remake of film Aurat made in 1940. Next question, which was the first Sanskrit film in India? The answer is Adi Shankaracharya, which was directed by G.V. Iyer in the year of 1983. Next question, which was first featured South film in India? The answer is Kichakavatham, which was directed by R. Natarajan Mudaliar in 1917. Next question, which was first color movie in India? The answer is Kisan Kanya, which was directed by Moti Gindwani in the year of 1937. So this was basically the first in the Indian cinema, right? So topic was, and on that
the many of the facts which been collected and developed videos on it, right? तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू लुक ऑन दिस ऑल थिंग्स, राइट? सो बहुत सारे हैं, राइट? लॉट ऑफ द वीडियोज आर बीन मेड. सी फॉर्मेट्स ऑफ द न्यूज पेपर्स, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. थ्री स्टेज ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज वॉट. सो यू वुड अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का थ्री स्टेजेस क्या क्या है, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, सी द formats of the newspapers, okay? न्यूज़पेपर के साइज के अनुसार न्यूज़पेपर को बेसिकली 3 फॉर्मेट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रॉडशीट फॉर्मेट न्यूज़पेपर का आकार 23.5 इंटू 29.5 इंच होता है। इस न्यूज़पेपर में 8 कॉलम होते हैं। डेली न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, मातृभूमि, ये सभी ब्रॉडशीट फॉर्मेट के न्यूज़पेपर होते हैं। टैबलॉइड फॉर्मेट के न्यूज़पेपर का साइज 11.0 इंटू 16.9 इंच होता है, जिसमें 4 कॉलम होते हैं। डेली न्यूज़पेपर के सप्लीमेंट्री पेपर्स टैबलॉइड फॉर्मेट के न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर का मधुरिमा। बर्लिनर फॉर्मेट के न्यूज़पेपर का साइज ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर से छोटा व टैबलॉइड न्यूज़पेपर के साइज से बड़ा होता है, जो लगभग 12.5 इंटू 18.5 इंच होता है। इसमें 6 कॉलम होते हैं। बर्लिनर फॉर्मेट का न्यूज़पेपर मिंट है। मिंट को भारत का सबसे पहला बर्लिनर फॉर्मेट का न्यूज़पेपर माना जाता है। So this is the formats of the newspapers, right? So ये आपको सब देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑल एंड इट्स टाइप, सी दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑन द टाइप्स ऑफ. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन अथवा चेहरे के हाव भाव से व्यक्त करते हैं तो इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें बोलकर या लिखकर किसी भी शाब्दिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम सब ने देखा है कि एक ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ के इशारों और विशिल की आवाज़ से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कई प्रकार होते हैं, जो है काइनेसिक्स, हैप्टिक, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनेमिक्स, oculics and paralinguistic. So these are the types of the nonverbal communications and what is nonverbal communication which we have learned, right? So in the short content, छोटे, आप इसको एंटरटेनमेंट फॉर्म में नहीं देखें, इसको आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एज वेल एंड डेवलप, राइट? सो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, एक्सप्लोर कीजिए आज, ठीक है? ट्राई टू एक्सप्लोर द टूडे शॉर्ट्स. ओनली फोकस ऑन द शॉर्ट्स, नॉट ऑन द लॉन्ग वीडियोस. सो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस पे फोकस करेंगे, यू विल लर्न इन्वर्टेड पिरामिड, राजा हरिश्चंद्र, काइंड्स ऑफ. सी दिस इज ऑल्सो वी हैव लर्न जस्ट द व्हाट द टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. In this video, we will learn that what the kinds of the non-verbal communication Kinds are. of non-verbal communication, that is kinesics, the study of use of body movement and gesture for non-verbal communication. Posture and movement can also convey a great deal of information. Haptic, the study of perception of object by touch. Communicating through touch is another important non-verbal behavior. Proxemics, the study of the amount of space that is needed between themselves and other. Chronemics, the study of the use of time in non-verbal communication, that is called chronemics. Oculics, the eyes play an important role in non-verbal communication, and such things as looking, blinking are important non-verbal behaviors. Paralinguistic refer to vocal communication that is separate from actual language. This includes factors such as tone of voice, loudness, pitch, and inflection. Kinds of So these are the kinds of non-verbal communications, ठीक है? तो ऐसे करके आपको नोट्स बनाने हैं, सो ठीक है? सो आप प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा. नाउ कमिंग टू द रिसेंट वीडियोस, दिस ऑल आर द बहुत पहले के वीडियोस सब सारे बने हुए हैं एंड दिस ऑल आर द फैक्ट्स, राइट? नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट वन एंड ऑल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? रास्टर एंड वेक्टर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. तो ये सारे आपको देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, ठीक है? न्यूज़ रूम की टर्मिनोलॉजी है, देखिए ये भी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. आइए इस वीडियो में हम जानेंगे मीडिया हाउस में उपयोग किए जाने वाले शब्दावली के बारे में. ओबी वैन यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन.
आपने सड़कों पर कई बार किसी न्यूज़ चैनल की वैन देखी होगी जिसमें छतरी यानी सैटेलाइट लगा होता है और उसी ओबी वैन के माध्यम से फील्ड की खबरों को सीधे प्रसारित किया जाता है। पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जो भी खबर ऑन एयर जा रही है वो पीसीआर से होकर जाती है जहां उन खबरों को एडिट किया जाता है। ऑन एयर, जो खबर आपको टीवी स्क्रीन पर चलती दिखाई देती है उसे ऑन एयर न्यूज़ कहते हैं। अर्थ स्टेशन, इसे टेलीपोर्ट भी कहा जाता है। जब आप किसी न्यूज़ चैनल में जाते हैं तो जहां आपको बड़ी बड़ी छतरी नजर आए, समझ लीजिए वही चैनल का अर्थ स्टेशन है। पीटीसी यानी पीस टू कैमरा, जब एक रिपोर्टर कैमरे पर किसी खबर को अपने नाम और जगह के साथ बताता है तो उसे पीटीसी कहते हैं। जीएमसी, तो ये सारे आपके टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है ना। वर्डप्रेस के बारे में यूडीएचआर क्या है, राइट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है, राइट। चलिए मैं आपको अब लेटेस्ट जो है खासकर पीएसए एंड ऑल, देखिए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ये लेटेस्ट 2024 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था इससे पीएसए से। आज हम बात करेंगे कुछ बड़े ब्रांड्स के पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स यानी कि पीएसए के बारे में। एचडीएफसी बैंक, इनका पीएसए था हम हार नहीं मानेंगे, जिसमें इन्होंने देश को ये संदेश दिया कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी हार नहीं मानेंगे। एसबीआई, घर में खुशियाँ, इसके जरिए एसबीआई ने ये मैसेज दिया कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर भी हम अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं। गूगल इंडिया, थैंक यू डॉक्टर्स, नर्सेस एंड ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स। इस पीएसए में गूगल ने उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को शुक्रिया कहा जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबकी रक्षा कर रहे थे। पार्ले, लेट्स कैच अप विद लाइफ। इस पीएसए के जरिए पार्ले ने ये बताया कि कैसे हम लॉकडाउन के बाद अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल बना सकते हैं। ये पीएसए सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स नहीं थे, बल्कि एक संदेश थे, एक प्रतिज्ञा थी कि हम सब मिलकर इस मुश्किल समय को पार करेंगे। आज भी ये पीएसए हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं और जब हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सो दिस वाज पीएसए एंड मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चंस, आप मैच द फॉलोइंग में ये सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारे दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन, लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर विच हैज बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो इट इज ऑल क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो लास्ट विल से हियर यस, ठीक है। लास्ट जो मैं आपको प्ले करता हूँ दैट इज पैनॉप्टिकन और वी कैन से द मैनेक्डोलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, एससीपी, ठीक है। चलिए ठीक है, ओरिएंटलिज्म ही देखते हैं, व्हाट इज ओरिएंटलिज्म। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हॉलीवुड मूवीज या वेस्टर्न मीडिया हमेशा मिडिल ईस्ट और एशिया को एक अलग नजरिए से दिखाता है, एक मिस्टीरियस, एक्सोटिक या बैकवर्ड दुनिया के रूप में। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ओरिएंटलिज्म का कंसेप्ट है जो एडवर्ड सेड ने 1978 में एक्सप्लेन किया। एडवर्ड सेड ने अपनी फेमस किताब ओरिएंटलिज्म में बताया कि वेस्ट हमेशा ईस्ट को एक स्टीरियोटिपिकल और बायस्ड लेंस से दिखाता है। इसका एम सिर्फ कल्चरल सुपीरियरिटी दिखाना था। कभी नोटिस किया कि हॉलीवुड मूवीज में मिडिल ईस्टर्न लोग या तो टेररिस्ट देखेंगे इसको, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग देखने के लिए, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग विद द लास्ट थिंग्स, ठीक है, विच इज एडा मॉडल देखते हैं एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। तो सी एडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। क्या आप एडवर्टाइजिंग के एडा मॉडल के बारे में जानते हैं? तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी काम से मार्केट गई और रास्ते में जाते हुए अचानक मेरी नजर एक शॉप के बाहर डमी में लगे हुए एक ड्रेस पर गई। उस ड्रेस ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसे देखकर मेरे अंदर उस ड्रेस के बारे में जानने की इच्छा हुई कि इस ड्रेस का प्राइस क्या है, इसका मटेरियल कैसा है। जिसके बाद मैं शॉप के अंदर चली गई। सारी चीजें जानने के बाद मेरे मन में डिजायर हुआ कि मुझे इस ड्रेस को खरीद लेना चाहिए और मैंने खुशी खुशी पैसे देकर उस ड्रेस को खरीद लिया। बस यही है एडा मॉडल, एडवर्टाइजिंग का इफेक्टिव मॉडल, जिसे एलियास सेंट एल्मो लेविस ने 1898 में दिया था। इस मॉडल का उपयोग आमतौर पर डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स में किया जाता है। ठीक है। सो हैव सीन, सो प्लीज़ आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएं और इसको शॉर्ट्स को देखते जाना है, ठीक है। सो आप कुल मिलाकर 7 डेज का टारगेट बनाइए और 7 दिन में सारे शॉर्ट्स फिनिश कर लीजिए, ठीक है। एंड हाउ यू विल मार्क द अटेंडेंस बाय लाइकिंग द वीडियोस, प्लीज़ मार्क द अटेंडेंस देयर, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आएगा कि चीज़ें क्या है, आपने देखा नहीं देखा, क्या है, किसने देखा,
ठीक है, तो आई विल रिकॉल जस्ट नेम एज वेल, यू कैन पिन ऑन द कमेंट एज वेल कि ठीक है। सो ओके, यस, जो भी चीज़ें लगे तो यू कैन share that comment as well on the videos, right? So we'll see, and please prepare the notes। आप स्टडी मटेरियल बनाए इससे, ठीक है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे आपको स्क्रॉल नहीं करना है, रील जैसा नहीं देखना है। ये कोई शॉर्ट्स और वो नहीं है, रील नहीं है। ये एजुकेशनल कंटेंट है, स्टफ है। इसको पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाना है, और फिर जो है आपको कमेंट करना है। जस्ट कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन नो कि हाँ आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने जाना, समझा। तो इट विल बी सो, प्लीज़ इसको 7 डेज के टारगेट में इसको फिनिश कर दीजिए। ज़्यादा नहीं है, छोटे 1 1 मिनट की कंटेंट है, बट बहुत है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे अभी कंटेंट अभी बनने हैं, ठीक है। बहुत हमने अभी काम नहीं किया है शॉर्ट्स पे, अभी सिर्फ बहुत कम ही बने हैं। वीडियोस पे ये सारे अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस हैं जहाँ पे आपको मिल रहा होगा उसी कंटेंट का, ये छोटा छोटा स्टफ है, 3 3 मिनट 5 5 मिनट का स्टफ है, ठीक है। तो इसको आप भी देख सकते हैं, बट मेजरली फोकस ऑन द शॉर्ट्स, राइट। चलिए, सो थैंक यू। एंड देर इज एनी सच क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क एंड शेयर विथ अस, देन प्लीज आस्क। नाउ यू हैव द टाइम। इफ देर इज एनी क्वेश्चन देन प्लीज। कोई क्वेश्चन है? मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो यूट्यूब मैंने दिखाया है, अभी आपको वेबसाइट्स पे भी बहुत सारे कंटेंट दिखाऊंगा जहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत सारे अभी मटेरियल्स, अभी अभी तो आपको सिर्फ वही कंटेंट दिया है कि स्टडी मटेरियल दे दिया टॉपिक का, सिलेबस का। अभी सिलेबस से हटकर जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को हमने समराइज करके आपके लिए बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं जो आपको देना है पढ़ने के लिए। लेकिन आप, मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम फंडामेंटल क्वेश्चन भी साथ साथ में पैरेलली कवर कर रहे हैं, और आपको हमने यूट्यूब का भी एक रास्ता बता दिया, आपको शॉर्ट्स यहाँ से पढ़ने, देखने, ख़त्म करने हैं, ठीक है, फिनिश करने हैं। तो क्योंकि यहाँ पे विजुअल, ऑडियो विजुअल दोनों मीडियम में कंटेंट है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए। जब आप पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा और ज़्यादा आप समझ पाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन, बताएं। खुशी, मोहम्मद बिलाल, सियोग, स्वागत है। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो हैप्पी होली, विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। कल छुट्टी है इसलिए हमने आज क्लास कंडक्ट कर दिए हैं, ठीक है, ताकि मैं एक भी क्लास में नहीं छोड़ूंगा नहीं आपका। सारा क्लास अगर किसी दिन नहीं हो पाती है क्लास, उसका एडजस्टमेंट क्लास मैं लूंगा, लेकिन क्लासेस आपकी कभी मिस नहीं होगी, ठीक है। दैट आई एम गिविंग यू द गारंटी। चलिए, ओके। हाँ, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चैनल पे जाएंगे जेमसी स्टडी हब पे, और वहाँ पे शॉर्ट्स में जाकर सारी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है। चलिए, सो थैंक यू वंस अगेन, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। चलिए, एंड सेफ होली, ध्यान रखेंगे।